Let's move on to our next session. Witness is an evocative book by former wrestler Sakshi Malik that has been co-authored by Jonathan Silverraj. From her humble beginnings to her Olympic glory and beyond, the memoir traces the extraordinary life of Sakshi Malik. It lays bare her battles on and off the mat, including her fight against injuries and her recent public confrontation with the Wrestling Federation of India. Jonathan's been covering wrestling for years. Currently, he is with Sportstar and has previously worked with organizations like ESPN and Indian Express. Joining him on the panel is Sakshi Malik's husband and former wrestler Satyavrat Kadian, Arjuna Awardee. Satyavrat first represented India at the inaugural 2010 Youth Olympics, where he won a bronze in the boys freestyle 100 kg category. He won silver at the 2014 Commonwealth Games in the 97 kg weight class. Also on the panel is wrestling Olympian Gyan Singh. He was the technical head of the ad hoc committee formed by the IOA during the ban on the Wrestling Federation of India. And Arup Ghosh would be moderating the session. So please, gentlemen, come on the stage and we would like to start the session with you. Good evening, everyone. First of all, please read this book. It's called Witness. It's written by Jonathan Silverraj, who's sitting next to me. It's a fabulous book. I've just finished reading it. It is the story of Sakshi Malik, one of India's most courageous and well-known wrestlers. Her husband, who is equally in his own right a very famous wrestler, Satyavrat Kadian, is here. Please, first of all, give him a very warm applause. मैं अंग्रेजी हिंदी में बोलता रहूँगा, थोड़ा मुझे भी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी आएगा। सबसे पहले जॉनथन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप ये किताब लिख रहे थे तो इसके फॉर्मेट पे आपने क्या विचार किया, क्या कहानी थी साक्षी की जो आप कहना चाहते थे? बोथ इंग्लिश हिंदी? तो सबसे पहले आई वांटेड टू नो, साक्षी से मेरी जब मैं फर्स्ट मिला था तो मेरा क्वेश्चन था कि आप बुक क्यों लिखना चाहते हैं, कि माने क्योंकि हर कोई माने चाहता है कि लाइफ में अपनी स्टोरी बताई जाए, बट आई आस्क्ड कि क्यों लिखना चाहते हैं आप, क्योंकि अगर वही मतलब था कि सब लिख रहे तो मैं भी लिखूंगी तो मुझे ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं होता। बट साक्षी का बहुत क्लियर था कि जो उनकी कहानी है, जो उनकी जो स्टोरी है वो इम्पोर्टेंट मानती थी, क्योंकि जो उनकी जो स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी नॉट जस्ट ऑफ हर, इट्स ऑफ मेनी गर्ल्स हु हैव कम थ्रू लॉट ऑफ दोज इश्यूज, एंड शी वांटेड लाइक जस्ट टू पुट हर स्टोरी आउट। इट वाज नॉट कि शी वांटेड टू से कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कि मैं सबसे दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर हूँ, या एकदम वो रोजी पिक्चर नहीं पेंट करना चाहती थी, वो एब्सोल्युटली ट्रूथ बताना चाहती थी, जो उनकी ट्रूथ थी। तो दैट वाज अनयूजुअल, क्योंकि नॉर्मली जो इंडिया में मैंने जनरली देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट मेजॉरिटी, वो एकदम परफेक्ट पिक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे Jonathan, this is exactly what I just want to develop this point, because Sakshi Malik, she won a bronze in the Rio Olympics in 2016, a gold in the Commonwealth Games in 2022, considered one of India's best international wrestlers. But the beautiful part about this book is that she keeps talking about many things जो उनको लगता था कि वो कुछ खामियां हैं। जैसे एक चैप्टर में एक जगह है कि जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे गई, शी वॉज वेल वर्स्ड इन हिंदी, इन हरियाणवी, सो शी सेड आई फाउंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। द काउंटर टू दैट इज़ कि अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो अपना बैकग्राउंड है, वो जहाँ से आई, कैसे स्ट्रगल किया। और एट वन पॉइंट जॉनथन, यू रिटन इन द बुक दैट शी it seemed like she had a natural gift for wrestling, because there's not much in the book about how her talent emerged, which is quite fascinating for someone of such a high caliber. So when we say कि there are some people जो कहते हैं कि मैं naturally बहुत talented player हूँ, like lot of people will just assume कि अब हैं, like साक्षी बहुत clear है, she does not think she is the most naturally gifted player, she is not the most physically strongest player, but she has like a devotion towards wrestling, which she mentions 2-3 places, which is different. She says there are players who are more talented than me, there are players who are more hardworking than me, but
I have like a sort of worship towards wrestling, which is what made me me. And I mean that's the only thing I can think of, because when you see her as an, and आपको लगता भी है कि you know why is she saying this, like उसे क्या मिल रहा है ये बोल के, क्योंकि normally you want your player to say कि मैं सबसे best हूँ. She even today she is the only woman wrestler to have an Olympic medal. तो कैसे बोल सकती है कि she is not having all of these things? But she is just I think the thing that stands out is her humility. She is an extremely humble person. As in, to have achieved so much and yet to say कि without all of this I did it. I mean it's unusual. I mean before I go any further, I want to say that a lot of like initially without Satyavart, I don't think this thing would have been possible, because a lot of times शुरू में Sakshi was not, माने वो comfort factor नहीं बनी थी. तो शुरू में अगर words missing होते थे तो Satyavart भाई she used to without even saying, she would just turn around and ask Satyavart इसे कैसे बोलते हैं, and Satyavart would then try and explain it to me in a better way. And a lot of the inputs I got because of what Sakshi was trying to explain, and she was not able to say it, then she would try to explain to Satyavart in Haryanvi, and then Satyavart will tell it to me. So just wanted to say that. सत्यव्रत, जॉनथन की किताब में इसमें एक पूरा चैप्टर है आपकी लव स्टोरी पे. आपकी जुबान से हम ये जानना चाहेंगे कि साक्षी ने कहा आप मिले, कैसे कहानी आगे बढ़ी, लेकिन बहुत भरोसा हमेशा उनको रहा है आप पर. तो जब आप उनके साथ जब आपका रिलेशनशिप बढ़ा, लेकिन शादी से पहले जैसे इस किताब में लिखा गया है उनको काफ़ी दिक्कतें आई अपनी फैमिली के साथ या बाकी जो भी हुआ, उसका कभी आपको लगा कि बात नहीं बन पाएगी? नहीं, एक्चुअली हमें एक दूसरे पे तो पूरा भरोसा था स्टार्टिंग से ही, और उनकी तरफ से तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कतें आएंगी. लेकिन ठीक है, जब आप कोई भी एथलीट हो, अगर मैं भी होता तो भी शायद मेरी फैमिली ऐसा ही सोचती, क्योंकि जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो तो फिर एक्सपेक्टेशन फैमिली की भी बढ़ जाती हैं इसको लेके कि आपके लिए और बेहतर कुछ सोचा जाए. तो हमारे मन में ऐसा कोई डर वाला वैसा भाव नहीं था कि कुछ गलत हो जाएगा. बस ठीक है, हम अपनी जगह अगर हम सही हैं तो एंड ऑफ द डे हमारे साथ सही हो जाएगा, बस इतना विश्वास था हमें. इसमें किताब में ये भी लिखा गया है और कोट साक्षी का है कि, और 2-3 बार आया जो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना अकॉम्प्लिश किया है, बार बार वो कहती हैं कि मुझे शुरू में भी था फियर ऑफ लूजिंग, मतलब हारने का डर था, बीच में भी था, आगे भी जब मैं उस लेवल पे पहुंची था. क्या ये एक नेचुरल होता? आप खुद एक इंटरनेशनल लेवल के रेसलर हैं, और ये क्या डर होता है कि मैं हार सकता हूँ, या क्योंकि उनका कहना है कई लोगों के मन में ये डर नहीं होता है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? जी, हो सकता है कई झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि लोग हमेशा यही दिखाना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट, और वो होते नहीं है. क्योंकि और मेनली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आप सीधा एक इंसान से लड़ रहे हो, आप इंडिविजुअली नहीं खेल रहे हो. जैसे जेवलिन हो गया या आपका एथलेटिक्स हो गया, आप अलग अलग भाग रहे हो, लेकिन हम अगले के दिमाग से, अगले की ताकत के साथ खेल रहे होते हैं, और 6 मिनट में हमारे साथ कुछ भी. तो रेसलिंग में तो मुझे लगता है कि डर थोड़ा बहुत होता ही है. तो ये जो रेसलर कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, हाँ, मैट के ऊपर जाने के बाद आपका डर अगर निकल जाए वो बहुत सबसे बेहतर बात होती है. लेकिन तो जब तक आप मैट पर पहुंचते नहीं हो तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि क्योंकि एक मूव और आप बाई फॉल हो सकते हो, तो थोड़ा सा ये रहता है. आपके बारे में साक्षी ने कहा कि आप और बहुत कुछ अचीव कर सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन कुछ लक का फैक्टर आपके खिलाफ चला गया. अब लक को कितनी अहमियत देती हैं? क्योंकि आप लोग एक तो इतनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर आपकी कोचिंग रहती है, आप लोगों का इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, आप बाहर टॉप लेवल रेसलर्स के खिलाफ करते हैं, तो इसमें लक का क्या फैक्टर है? क्योंकि क्या खेल में इसकी अहमियत है? ये अलग अलग स्पोर्ट्स पे अलग अलग चीज काम करती है. जैसे मैंने आपको बताया, कुश्ती 6 मिनट का आपका एक मैच होता है, आप उस अगले प्रतिद्वंदी के दिमाग से भी खेल रहे होते हो, उसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो क्या करना चाह रहा है, और अगर मैं उसको अगर सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि वो क्या करना चाह रहा है, तो फिर मैं नहीं जीत पाऊंगा. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि मैं लक को, एक्चुअली एक एथलीट ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन से तैयार होता है. जैसे साक्षी ने भी बुक में बताया कि मैं सबसे पावरफुल नहीं हूं, मैं सबसे ज्यादा टेक्निकल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ओलंपिक तक पहुंच पाई और मेडल. आपकी फैमिली के सैक्रिफाइसेस, आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्लीप, बहुत हर चीज का कॉम्बिनेशन अगर किसी प्लेयर को मिल जाता ना, तो वो ओलंपिक लेवल पे जाके जो है अचीव कर पाता है. ज्ञान सिंह जी, आप एक बहुत ही मशहूर कोच हैं, बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं.
आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस किताब में ये लिखा गया है कि साक्षी शी राइट्स क्वाइट अ बिट अबाउट द टफेस्ट पार्ट इज वेट लॉस, कैसे वेट को घटाया जाए बिफोर अबाउट, जो विनेश फोगाट के साथ हुआ पेरिस ओलंपिक्स में, और हम सबको पता है उसका क्या हश्र हुआ, कितने लोग, हम सब डिसअपॉइंट हुए, सारे भारतीय डिसअपॉइंट हुए। लेकिन साक्षी बार बार इस पॉइंट को उठाती हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, लोग अपना 2 दिन में 6-6, 7-7 किलो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारी ऑडियंस को और ख़ास तौर से यंग रेसलर्स को, और क्या ये सिस्टम बदला जा सकता है? देखो, वेट की हर जो भी वेट कैटेगरीज है, कोई भी है, वो रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, उसमें मैक्सिमम बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा हमारे कोचिज 90% नहीं जानते, चाहे कोच नाराज हो ये हो, 90% कोचिज नहीं जानते, कोचिंग भी नहीं जानते। मैंने जब पहले कुछ दिन के बाद मैं गया, मैंने एक चीज़ देखी, लंबा तो नहीं हो जाएगा कहीं आपका, मैं कोचिंग पे आ गया क्योंकि आप नहीं बोलिए। तो कहने का मतलब है, मैंने एक चीज़ देखी, आप एजुकेशन में जाओ, आपको कई उदाहरण दे देंगे, जरूरी नहीं अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच हो, भाई ठीक है। मैंने कहा भाई ये भी जरूरी नहीं कि एक टॉपर ही अच्छा मास्टर हो, टीचर हो, हाँ जी, लेकिन क्या 10वीं फेल टीचर कर लेगा? 10वीं फेल को भी टीचर लगा दोगे? टीचर की उसने काबिलियत तो होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में मैंने देखा है 10वीं फेल ट्रेनिंग दे रहे हैं पीएचडी वालों को। अब 10वीं फेल कौन से हैं? जो नेशनल इवन स्टेट में भी जिसकी प्लेस नहीं है। अगर आपको कैटेगराइज करो 10th 12th ग्रेजुएशन और एमए और पीएचडी, तो हमारा ओलंपिक पीएचडी हो गया। ओलंपिक को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कोच जो स्टेट में पोजीशन नहीं लेके आए। मेरा ये प्रिंसिपल है, उसको सब माने ना माने वो अलग बात है। कोई भी एथलीट होना, स्पोर्ट्समैन होना जरूरी है, वो ओलंपिक वाला हो नहीं, मेडलिस्ट हो, लेकिन कम से कम इंटरस्टी का मेडलिस्ट, कम से कम स्टेट चैंपियन तो हो। लेकिन आप हमारे कोचिंग में देखना ऐसे भी नहीं है। तो दूसरी, अब वो बता लग रहा मेरा कुछ थोड़ा सा ही सा है, मैं बोलता बहुत हूँ, लोग फिर कुछ इसमें बातें कुछ एक्स्ट्रा निकल जाती हैं। और मैं आपको बताता, जो एज ए रेसलर, मैं पहला रेसलर था जो हॉस्टल से निकला था। मेरे से पहले कोई रेसलर हॉस्टल से नहीं आता था। हनुमान अखाड़ा, पुलिस और आपकी सर्विसेज, इनके अलावा तीसरी जगह से कोई नहीं आता था। जब मैं पहली बार एक बार गया, मेरे को ध्यान है कंबाइंड यूनिवर्सिटी की तरफ, तो ये 1979 की बात है, हैदराबाद नेशनल गेम्स था। मेरे साथ वाला एथलीट वार्म अप हो रहा है और वो कह रहा है अरे क्यों वार्म अप हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी के बच्चे से तो है ही, मेरे से ही कुश्ती है। मेरे साथ ही वाला कह रहा है अच्छा इंटरल यूनिवर्सिटी के बच्चे तो है ही कुश्ती, और मैं उस नेशनल का नेशनल चैंपियन बना। तो चलो ये तो होगी वो बात। अब मैं वेट पे आता हूँ। वेट कैटेगरी का, वेट का जो प्रोसीजर है, जैसे वेट आपके अंदर बढ़ता है वैसे ही वेट घटता है। वेट की ये किसी बच्चे को मैक्सिमम नहीं बताते कि वेट कैसे बढ़ता है, वैसे ही वेट घटेगा। घटने का भी वही प्रोसीजर होगा ना जो वेट बढ़ा है, कोई बॉडी वो तो है नहीं। तो इस प्रोसीजर में क्या है, जैसे विनेश का आया है, ऐसा वर्स्ट टाइम पे होता है, सेकंड डे वेट ना आना। पहले दिन वेट नहीं आएगा, आपको बहुत केस मिलेंगे, लेकिन सेकंड डे अगर वेट नहीं आता, ऐसा रेयर केस मिलेगा। और वो रेयर केस क्यों होता है? क्योंकि आप फिर उतनी डाइट और वो नहीं ले पाते, उतनी मैक्सिमम जो है ना इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट इनसे नहीं होता, जो ग्लूकोज वगैरह जिसमें ज्यादा है उससे वेट गेन होता है। तो वो चीजें हम उसके दौरान लेते ही नहीं। स्पोर्ट्स के दिन, स्पोर्ट्स जिस दिन होता है, हमारी 4-5 कुश्तियां होती है उस दिन, तो आप खा ही नहीं पाओगे, ले ही नहीं पाओगे वो चीजें। तो ये तो विनेश ही बता सकती है कि उस दिन क्या हुआ। लेकिन ये मुझे पर्सनली उस दिन टीवी पे भी मेरी डिबेट में यही बात हुई थी, इसमें विनेश और उसका कोच और तीसरा मैनेजर यही सही पोजीशन बता सकते हैं, और कोई बताएगा वो मतलब मेरा मतलब झूठ ही बोलेगा या अपना असेसमेंट ही देगा। असेसमेंट नहीं होता इसमें, आपका एग्जैक्ट पता है आपने क्या लिया क्या नहीं लिया। और ओके ज्ञान सिंह जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। नाउ आई नो व्हाट इज द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज एड्रेस्ड इन दिस बुक बाय जोनाथन। देयर आर सम हेवी ड्यूटी चैप्टर्स, सो इट्स हाई टाइम आई हिट देम. I had been warned by the festival director Sandeep Mishra that be careful, so I'll try to be as careful as possible. But how much careful can you be when the topic is Brij Bhushan Singh? So page 81, Jonathan,
Sakshi Malik makes serious allegations of sexual exploitation against the then Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan, which you have documented. You have also made serious allegations against the former sports minister Anurag Thakur, and you have written that he remained cold and uncooperative. Maybe those weren't the words, but that is the inference. The Home Minister was also, he gave certain assurances which may not have been fulfilled later. While writing this part, how careful were you? Were you worried about certain things? Did you get legal indemnification? Are you still worried? See, so when you're writing this book, of course, the initial thing is this is the truth of the athlete. The athlete is telling this to you. So first, you document all of it. Then you see a lot of these things are part of the charge sheet as well. So in one case, there's already a legal thing going on with it. Once that is done, there's also a lot of stuff which doesn't make the book, because it's not, I mean, there is no, I mean, it would start a fresh set of legal allegation, I mean, like legal cases going on with that. So there is a lot of the stuff which didn't make the book as well. Whatever has made the book has gone through a legal vetting process. It's gone through, a bunch of lawyers who have looked at it and who have taken the call to. So whatever you see in the book is the stuff which has gone through a legal vetting process. And are you happy with it? I am as see. I'll explain. The book is Sakshi's. Ultimately, whether or not it is she satisfied with it? I think she is satisfied with it. As I am just a person who's putting her voice out, but the voice is hers. सत्यव्रत, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जब एजिटेशन शुरू हुआ, पहला फेज हुआ, बंद हुआ, फिर से रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर वो क्रिमिनल एफआईआर दर्ज किया गया, और इस किताब का नाम जो विटनेस है वो साक्षी के नाम पर ही है. साक्षी मीन्स विटनेस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड विटनेस. एंड शी साइंड, शी वॉज ब्रेव एनफ टू साइन. जबकि बहुत कई लोग जिन्होंने फीमेल रेसलर्स ने जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे, मैनी ऑफ देम दे विथड्रू. सत्यव्रत, आपसे मैं ये स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, साक्षी तो थी ही, वो फेस बन गई बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, और आप उनके साथ बिल्कुल एक स्तंभ यानी पिलर की तरह मौजूद रहे. आपके मन पे क्या गुजरी? क्या आपको कभी खतरा लगा कि उनके हेल्थ पे बात आ सकती है? कहाँ तक ये चीज़ जाएगी? और जब कुछ लोगों ने वो जो अपने कंप्लेंट्स विथड्रॉ करने लगे प्रेशर में या जो भी कारण हुआ वो स्थिति बताइए हमें. जी देखिए, हमारे को जब हमने पहला प्रोटेस्ट किया था तो हमारे को ये था कि इस चीज़ का समाधान निकल जाएगा. कई मीडिया में तरह तरह की बातें घूमी, सब कुछ हुआ, वो हमारे को कोई जो भटका नहीं, क्योंकि हमारा जो क्लियर था कि हमारे को हमारी रेसलिंग क्लीन चाहिए, हमारे को हमारी जो फीमेल एथलीट्स हैं वो सुरक्षित महसूस करे, सिर्फ इतना चाहिए. कई लोग इसको स्टेट में डिवाइड करना चाह रहे थे, कई इसको ये दिखाना चाह रहे थे कि हम सरकार के खिलाफ है, जबकि हमारा सीधा था कि भाई हम बार बार हर स्टेटमेंट में यही बोलते थे कि अभी हम कैरियर के उस लेवल पे हैं कि जिस स्पोर्ट ने हमारे को इतना सब कुछ दिया है, हम बदले में उस स्पोर्ट्स के लिए, उस पर्टिकुलर खेल के लिए कुछ करके जाए बस. तो पहले के बाद हमारे को लगता था कि समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान नहीं हुआ. लेकिन फिर जब हमने दूसरा स्टार्ट किया तो फिर हम सब कुछ दाव पे लगा चुके थे. फिर हमारे को इतना वो डर भय नहीं था कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कैरियर वैरियर सब खत्म होने ही शुरू हो गए थे. जैसे साक्षी ने जिस प्रकार से रेसलिंग छोड़ी और विनेश ने बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद इतना एक साल अपना खराब होने के बाद ओलंपिक के फाइनल्स तक वो पहुंची है. तो हमारे को पता था कि अब इसके बाद हमारा कुछ भी दाव पे लग सकता है, तो वो डर वर सब हम दूसरे वाले में तो घर छोड़ के आए थे. जहाँ तक सरकार की बात है, टॉप मिनिस्टर से आप लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने घर बुलाया, अश्योरेंसेस दिए, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक बात पहुँची. जब उन लोगों के बारे में आप सोचते हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि किताब तो मैंने पढ़ा है, तो उसमें साक्षी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, और अगर वो डिसअपॉइंटेड थी, आप भी डिसअपॉइंटेड रहे होंगे. तो ये जो मनोस्थिति है, ये कहाँ से आई, और आप क्या उम्मीद कर रहे थे जो कभी अब तक उसका नतीजा नहीं मिला है आप लोगों को? जी देखिए, साक्षी की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो एक सच्ची इंसान है. तो सामने से जब अगर उसको कोई एश्योरेंस मिलता था तो वो सच मानती थी उसको कि हाँ, अगर इतने बड़े आदमी ने कुछ बोला है तो हो जाएगा इसका. लेकिन फिर नेक्स्ट डे चीजें चेंज स्टार्ट
होना स्टार्ट होती थी तो डिसअपॉइंट तो लाजमी बात है, साक्षी सबसे ज्यादा होती थी इन चीजों को लेके। और जब रेसलिंग फेडरेशन में दोबारा जैसे उनके डमी संजय सिंह को बना दिया गया, उनके बेहद खास को, तो उस दिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट थी साक्षी। और सच्चा इंसान थोड़ा भावुक होता है, और भावुकता कई बार हावी हो जाती थी साक्षी के ऊपर। तो ठीक है, उसके लिए तो मैं था कि मैं संभालता था उनको ऐसी जगहों पर। और हरिद्वार में जो मेडल को लेकर खेल हुआ, जिसमें ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, जोनाथन ने लिखा है कि ये खेल हुआ, यहाँ पे गेम हुई, कोई आपके सारे मेडल्स लेके वहाँ से चले गए, बाद में उन्होंने लौटाए और वो शायद अब तक उन्होंने पिकअप नहीं किया है अपना मेडल। तो उस दौर के बारे में बताइए कि जब आप लोग वहाँ पहुँचे, आपकी क्या उम्मीदें थीं, और फिर बाद में आप लोगों को जैसे कहा कि अंग्रेजी में कहते हैं दैट वी न्यू वी हैड बीन प्लेड, जो लिखा गया है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमें फ़ायदा उठाया गया, तो ये कैसे हुआ? देखिए, एक्चुअली क्या है, हम कोई आंदोलन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं और ना हम ऐसे कोई एक्टिविस्ट, हम एक सिंपल खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं। हमारे को तो पता भी नहीं था कि हम कई बार तो हम डिस्कस करके कुछ करने जाते तो हमारे को पता नहीं था कि क्या अंजाम होगा और कैसे कैसे जो है ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं किसी भी जो आप काम करने जा रहे हो उसको रोकने के लिए। हमारे को कोई अंदाजा नहीं था। तो अगर मैं इस पूरे आंदोलन को एक तरह से देखूं कि हमारी ओर से कोई गलतियां नहीं हुई हैं तो ये सच बात नहीं होगी, लेकिन वो हमने जानबूझ के नहीं की, ये सच बात है, गलतियां हमारी ओर से भी हुई हैं। लेकिन फिर वो कि कई बार तो वो है परमात्मा बचा लेता था हमारे को गलतियां करने के बाद भी, क्योंकि हमारा जो मोटिव था वो पर्सनल स्वार्थ का तो था नहीं, हमारे को कुछ चाहिए नहीं था। हमारे को चाहिए था कि हमारा रेसलिंग कैरियर एंड स्टेज पे है, हम 30+ हो गए हैं, मुश्किल से हम 2 साल कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी आ रहे हैं, अभी जूनियर लेवल पे हैं, अभी कैडेट सब जूनियर लेवल पे हैं, वो हमारी स्टेज पे जब आए वो खुल के परफॉर्म करें। आप देखोगे कि बदलाव एकदम से नहीं दिख रहा कि भाई जैसे वापस संजय सिंह आ गया, लेकिन फिर भी हमारी इतने छोटे से बदलाव में भी हमारी 5 महिला पहलवानों ने ओलंपिक में क्वालिफाई किया फर्स्ट टाइम। तो हमारे करने से कुछ तो डर खुला है लोगों का, और जो गलत करने वाले थे वो भी अब सोचेंगे इस बारे को लेकर। तो कुछ चीजें होती थी कि हमारे जो अच्छी चीजें थी उनको खराब करने की कोशिश, लेकिन ये हर आंदोलन का पार्ट होता है। अब हम इतना बड़ा आंदोलन करके और वो सब झेल के, अब तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इन सब चीजों की नॉलेज उस टाइम होती तो हो सकता था हम वहां और बेहतर कर पाते। सत्यव्रत, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि साक्षी ने ये किताब क्यों पब्लिश कराई, वो क्या कहना चाहते थे, और ख़ास तौर से ये बहुत बड़ा और भारी कदम है, ये किताब बहुत बेहतरीन पढ़ने में आया, और उनके मन में क्या है वो सब कुछ है, उनकी अपनी कहानी है, लेकिन मकसद क्या था, वो क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, साक्षी का आप देखोगे इस बारे में साक्षी ने अपनी भी कोई कमी नहीं छुपाई होगी। वो उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे नहीं किया कि मैं बेस्ट पर्सन हूं या मैं इतनी बेस्ट इंसान हूं इसलिए मेरे को ओलंपिक मेडल मिला। एक इंसान है, इंसान के प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो उनका बस मकसद ये था कि अगर मेरी कोई किताब पढ़े या इसके बारे में जब भी जिक्र हो तो इससे जो महिला एथलीट्स है वो कुछ ना कुछ सीखे, जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या भाई हरेसमेंट के बाद उन्होंने कैसे कम बैक किया, और उसी आदमी के सामने सारे कंपटीशन लड़ने पड़ते थे, और फिर उससे बच के भी कैसे रह के भी वो अपने मन को समझा के अपने आप को एक बेहतर एथलीट बना पाई। तो ये मैसेज वो देना चाह रही थी सभी एथलीट्स को। Jonathan, one of the most important points in this book I felt was that when the agitation was at its peak against Brij Bhushan, so there was Vinesh, there was Bajrang and Sakshi more or less became the face of the agitation. But when the agitation ended, and then when the exemption trials happened for Vinesh and Bajrang, Sakshi says that they took it was a wrong decision. 2, because of lack of communication, we could not communicate. Hence, I totally disagreed, and it was an absolutely wrong move. And yes, there was a rift. So among 3 very close and dear friends, a rift happened over something like this. What is your take? So I think it was part like if you understand the nature of wrestling एक माने इट्स स्पोर्ट जहाँ पे आपकी मेंटालिटी एक ऐसे होनी चाहिए, एकदम एक्सट्रीम होने की, एक्सट्रीम पर्सनालिटीज होने की। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर
और साक्षी ने ऑल्सो बोला है कि कोई आधा रेसलिंग नहीं करता, आइदर यू डू फुल रेसलिंग और यू गिव अप, माने पहले 2 महीने में छोड़ देते हैं आप। इन दिस केस साक्षी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स व्हाई दैट फीलिंग, उनके लिए फीलिंग आई थी कि दे वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि वंस यू आर इन रेसलिंग किसी का मन नहीं करता कि मैं छोड़ दूं, आई गिव अप माय गेम, आई गिव इट अप एंड गो अहेड। आई थिंक in Sakshi's case, she was perhaps like the choice she made, maybe to the like in her thing, like you can I when she told about what happened, she was at that moment she was very adamant ki this was not right, which is why ki usi din mane she had a press conference that day saying I had nothing to do with it. Like, she was very clear that there was a difference of opinion in what had happened with the question of exemption of trials. बट शी ऑल्सो नोज, जैसे हर कोई आंदोलन में सत्यव्रत जैसे बताते हैं कि सबको माने सही डिसीजन नहीं पता होते पहले, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो एक्सपर्ट है इस लाइन में, विच इज वाई शी ऑल्सो सेज दैट वॉट एवर हैज हैपेंड। शी इज अगेन बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट द फैक्ट कि एट दैट टाइम शी फेल्ट वेरी अपोज, वेरी अनहैप्पी विद वॉट हैड हैपेंड, बट शी ऑल्सो नोज कि दे आर फाइटिंग अ बिगर मैच, कि माने मैच में बहुत पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट अगर आप खा भी देते हैं, ऐसे नहीं कि मैच खत्म हो गया, यू आर स्टिल फाइटिंग, there is still a bigger goal to be won. So over there I think I can understand where she's coming from, and I can, if you ask me personally, I can also sort of understand where the other guys were coming from. And the fact is that ये जब वो तीनों को मैंने अलग अलग जगह पे भेज दिया, it was a clever idea, because you know कि जब अगर साथ में होते हैं तो decisions ग्रुप में बनती हैं, अगर इंडिविजुअली हो जाते हैं लोग तो इंडिविजुअल डिसीजंस बनना शुरू होते हैं। सो आई कैन सॉर्ट ऑफ सी वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, एंड शी इज अगेन, देयर वाज नो नीड टू से इट एज एन honesty. Slightly digressing, I just want to know from you, because you covered the wrestlers' agitation. You've done a very detailed book with Sakshi and Satyavrat. You've got all the details in, but when you look at her career and when you look at the sport of wrestling, the way it is being managed now, it's in a shambles. No one recognizes Sanjay Singh. There are such huge problems. On the other hand, there was an ad hoc committee which was formed. Then the ad hoc committee was disbanded. Again, it came back, if I've got my facts right. But from you, I want to know, what is your sense of the sport? Where are we going? I think eventually, like you said, as in the current Wrestling Federation of India, it's going against the High Court decision if it tries to conduct tournaments and all. The fact that they are still adamant on conducting it like that, it suggests what is important for them. It's their power which is important for them, rather than what is the benefit of Indian wrestling. And the fact is also that Indian wrestlers are suffering. Like, they need competitions to compete in. Competition से उनकी वो नौकरियां लगती हैं, that is important as well. But I mean, over here, I mean, the High Court is very clear about what it's saying. It's very clear what the decision is, and if you are not following it, and because you have other goals in your mind, then it shows what your priority is. आपकी उनकी priority is the federation, not the individual athletes. At the same time, सत्यव्रत भाई ने एक बहुत interesting चीज बताई थी. I think we overlooked it. मैं फिर से repeat करूँगा जो उन्होंने बोला. This time in the Olympics, without a federation, we had the most number of women participation in the Olympics in wrestling, women's wrestling. Out of that, one of them was in the final and then went out. Another, I mean, this was actually it happened in the absence of a federation. So, I mean, I don't know what it says कि federation की role क्या है जब in the absence of federation 5 लोग Olympics जा रहे हैं, एक final पहुंचती है. तो ज्ञान सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं. इस पॉइंट पे आपके पास आता हूं कि दो चीज़ें हैं ज्ञान सिंह जी. एक तो जो जॉनथन कह रहे हैं कि फेडरेशन नहीं भी था, उसके बावजूद हमारे रेसलर्स एक बहुत बड़े अच्छे पोजीशन पे पहुंचे. लेकिन दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात वो है जो पहले भी आप उस पर रोशनी डाल चुके हैं कि एक पूल होना चाहिए. विनेश, साक्षी, बजरंग, सत्यव्रत, इनके बाद एक पूल ऑफ यंग रेसलर्स होना चाहिए. क्या उस पूल से आप जो तैयारियां हैं उससे आप संतुष्ट हैं? और दूसरा, फेडरेशन का रोल संक्षिप्त में क्या होना चाहिए? देखो, मैंने फेडरेशन में भी काम किया है, एज ए रेसलर, एज ए स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ. देखो, फेडरेशन का काम अलग है, डिफरेंट है.
लेकिन कोई ये कहे फेडरेशन ही मेडल दिलाती है तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये इसने प्रूव किया है रेसलिंग ने कि इतने दिन डिस्टर्ब होने के बिना कैंप के, हमारे टाइम भी इससे ज्यादा कैंप लग जाते थे, जबकि हमारे पास साल में 1-2 टूर्नामेंट होते थे, 1-2 ही कैंप लगते थे, वो भी कैंप नहीं लगे, तब भी बच्चों ने अचीवमेंट की। तो मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट एक अच्छी होनी चाहिए, वो एक अच्छा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अचीवमेंट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा फेडरेशन का कोई काम नहीं है, फेडरेशनों के कारण अच्छी अचीवमेंट हो सकती है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ही सारा सब कुछ करता है, ये एक विचार गलत है, मतलब ये गलत है। पर लेकिन उसका अगर अच्छा होगा कोई, मान लो जैसे आपने लग कर उसका बात किया था, उसमें हमारे यहाँ बोलते हैं मेड और बोर्न ज्यादा कुछ नहीं होता, ज्यादातर जो लूज कर जाते हैं उन्हीं का लक खराब क्यों होता है। जो ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं वो तो कभी नहीं कहते भाई मेरे को लक्की आया है या लक्की, मैं जो लूज कर जाते हैं, चाहे मैं भी हूं चाहे कोई भी हो, यार आज मेरा दिन नहीं था या मेरा लक नहीं था, तो लक शब्द कोई खास, इवन जो मैन टू मैन गेम है या जो ऐसे गेम है उसमें कोई खास मैटर नहीं करता। हाँ कभी कभी ये जरूर मैटर कर जाता है कि आपकी बॉडी है वो किसी दिन वार्म अप ठीक नहीं हो पाती, किसी दिन वो मसल्स का है या कुछ आपकी डाइट या कुछ कर रहे जाए, वो अलग बात है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और फेडरेशनों का ज़रूर है, फेडरेशन के अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका, बस और कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे जो जीतते हैं वो अपनी मेहनत से जीतते हैं, और अभी जो हमारे टाइम में अचीवमेंट कम आती थी, क्यों, हमारे पास लिमिटेशन थी, अब लिमिटेशन खुल गई। 82 एशियन गेम्स में पहली बार हमने अब्रोड जाके देखी थी, जो हमारी रेसलिंग है और ये रेसलिंग में डिफरेंस है। तो हम शायद इसलिए हारते थे क्योंकि हम एक तो मिट्टी में करते थे, हमारे को मैट कब मिलता था, जब कैंप में जाते थे या नेशनल होता था, उसके अलावा मिलता नहीं था। तो उसके बाद इंप्रूवमेंट शुरू होना, विदेशी कोच आए, लेकिन अब विदेशी कोच का एक कल्चर ही बना दिया, ये भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, आपको मिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स साइंस नहीं थी उस टाइम तक, अब स्पोर्ट्स साइंस भी, अब हमारे पास सब कुछ है, तो हम मेडल ज्यादा जीत रहे हैं। जी सत्यव्रत, एक लास्ट पॉइंट आपके पास आना चाहता हूं कि ये एजिटेशन जब करीब करीब दूसरे दौर में था, खत्म होने के कगार पे था, तो कई जूनियर रेसलर्स ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस स्टेटमेंट भी दिया था कि इन लोगों की वजह से देखिए हमारा करियर ठप हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको वो क्या लगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और दूसरा आपके ज़ाती ताल्लुकात, पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये जो यंग रेसलर्स हैं जो आप लोगों को हीरो मानते हैं, अब कैसा है? नहीं, हमारे ताल्लुकात सबके साथ अच्छे हैं, और पॉलिटिक्स तो है ना स्पोर्ट्स में, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। मेरा तो एक, हर पॉलिटिकल पार्टी से मेरा तो एक क्वेश्चन है, आप फेडरेशन हुआ या किसी भी खेल की जिम्मेदारी उस शख्स को क्यों दे रहे हो कि अगर आपको उसको हटाना पड़े तो आपको पॉलिटिकली अफेक्ट कर सके। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। आप देख रेख, फेडरेशन का काम होता है देख रेख करना स्पोर्ट्स की, आप ट्रायल्स कंडक्ट करा सकते हो, आप इंटरनेशनल नाम भेज सकते हो, इससे ज्यादा तो मेरे को लगता नहीं, आप कैंप लगा सकते हो। तो वो जूनियर रेसलर्स कौन थे, क्या था, वो तो आप बस मेरे इस बात से समझ ही गए होंगे। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स तो हर जगह है, अगर हम जॉब करते हैं तो उस ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होगी, पूरी तरह से हटा देंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स अफेक्ट करे किसी स्पोर्ट्स को तो उससे बचना चाहिए मेरी नजर। चूंकि आपने ये बात कही तो रहा नहीं जा रहा, ये भी पूछ लेना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट जब एमएलए बन गई कांग्रेस टिकट पे, तो उसको लेके भी हरियाणा के कई रेसलर्स नाखुश थे, क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है हरियाणा में बहुत तगड़ा। तो आप विनेश के बहुत करीबी दोस्त हैं, आप लोग सपोर्टर्स रहे हैं, आपके मन में क्या गुजरी जब वो एमएलए बन गई? क्या आपको लगा कि अभी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, या जो किया उन्होंने सही किया? देखिए, कई जैसे ट्रायल से एग्जाम्पशन की बात थी उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी, कई बार ऐसा समय आ जाता है कि जो भी आपके डिसीजन होते हैं वो आप पर्टिकुलर सिर्फ अपने आप के लिए होते हैं। तो विनेश का जो डिसीजन था वो इंडिविजुअल डिसीजन था, लेकिन प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। ये अगर वो आज एमएलए बन गई हैं या वो 5 साल बाद पॉलिटिक्स में जाती, फिर आप ये बोलते कि प्रोटेस्ट तो भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, तो ये बात गलत है।
पॉलिटिक्स, हमारा प्रोटेस्ट था, निस्वार्थ था, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं था। और जोनाथन जी ने तो बड़े नजदीक से देखा है इस चीज को। हाँ, लेकिन वो अब किस स्तर तक हमारा प्रोटेस्ट पहुंचा, उसके बाद उनका कितने दिन बाद वो डिसीजन उनको लेना चाहिए था, 5 साल बाद लेना चाहिए था, या अभी उन्होंने जल्दी ले लिया, ये तो उनका इंडिविजुअल फैसला है। और जो आपको किसी के इंडिविजुअल फैसले की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है कई बार। So before winding down, Jonathan, your book ends on a very poignant note. If I may request you to just read out the last 2 paragraphs in your own words, it would be a wonderful thing. This is Sakshi's words. Even at my lowest point, that's what gives me hope. When I was a young girl, I didn't have the belief that I could fight back. But now I do. The more I think about it, it seems almost a little funny to me that after all the crimes Brij Bhushan Sharan Singh got away with, it was going to be this quiet woman, afraid of even raising her voice, whom he thought he could have his way with, who ended up being the one who was going to make him pay. There's still work to be done. Every wrestling bout has 2 periods. When I think of this case I'm fighting, I feel I'm through the first period. I'm trailing at this point and the score is against me. The clock is counting down, but I'm not done just yet. I've won before from this position. I'm going to win again. Questions, please? Any questions? Yes, I have one, please. My question is for Satyavrat and then for Jonathan. Satyavrat, ये बहुत एक important story थी साक्षी की life की. ऐसी क्या चीज़ थी जोनाथन राइटर में कि आपने इन्हीं को ट्रस्ट किया इस किताब को लिखने के लिए? देखिए, जोनाथन बहुत, एक तो काफी समय से रेसलिंग, आपको एक रेसलर के मन में झांकना था उनकी कहानी लिखने के लिए, और आपको हर रूल्स का भी पता होना चाहिए था। इतने साल से जो है रेसलिंग को कवर कर रहे हैं, तो इनको पता है एक्चुअल में, इन्होंने काफी समय से, और कई बार हमने जो ये लिखते थे हमने पढ़ा भी था, तो बात तो है इनकी राइटिंग में, वो तो आपको बुक पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी हमारा फैसला सही था या गलत था। बहुत ही सही था। Jonathan, just one question on the process of writing from you. You were channelizing someone else's voice, someone whose native language is not English, and you were translating it. Even when you start reading the first chapter, I'm sure you were very conscious of the fact that it was someone else's voice you were channelizing. As a writer, we also grow very close to our subject. Like Satyavrat is saying, you've obviously known Sakshi for years, you know the world of wrestling. How difficult or easy was it for you to be objective enough to just channelize her own voice and not put in your own thoughts? I think that's part of being a journalist, is that you're trying to stay objective about whatever you're writing. Even in Sakshi's case, as in, like, initially when I first started this book, as in, initially of course Satyavrat was sitting with us because just to give her that comfort factor, you know, that shuru mein obviously, like, even though I've been writing wrestling for years, like, she needed someone like Satyavrat along with her. Like, धीरे धीरे the comfort became, the factor became slightly easier, and he would sit in the other room. फिर बीच में साक्षी बोलती थी मुझे how do I explain this, then वहाँ से वो बोलते थे, and फिर then I would try and understand what she's saying. But in this case it was like she was initially asking why don't you just write कि मैंने इस मैच में ये किया, मैंने उस मैच में वो किया, और उस टाइप से क्यों नहीं लिख रहे? तो ऐसा एक साक्षी, the reason we are doing this book is because you want to explain yourself, and it was I think fairly easy, because most of when you're talking about journalism, you are not trying to put yourself in the, at least what I consider journalism, you are not trying to put yourself in the you know, you're not putting your voice through. I think I also have to be, you know, there's some amount of honesty I have to put, because I've been a journalist, I've been doing it for a long time. There's a lot of aspects of Sakshi's personality which, you know, you see from the outside, which as an individual it's difficult to, you know, you don't even realize it. Machli doesn't even know it's swimming in water. So even as Satyavrat used to tell a lot of times, once Sakshi started speaking, she absolutely opened up,
And Satyavat has this thing about her, as in he's, you know, much more, he's a very logical person, but Sakshi is very different. It's like when she opens up, she opens up. तो कब एक दो पॉइंट्स थे जब सत्यवत ने बोला कि थोड़े आराम से बोली सब कुछ तो नहीं बोलना उस टाइप से. But generally, it like I mean, it was, I think it's fairly, as in it's not difficult, as in when you're the star of this book is not me, it's Sakshi. It's Sakshi's book. It's so, I mean, like, it has to be her voice that comes through. Every time, you know, you think that am I putting my ideas into it? You have to take a step back. You have to let the athlete speak. Because it's the athlete's book, it's not your book. Thank you. We have one more question. Yes, please. Hi, Jonathan. Shazia. Jonathan, I have a question for you. This agitation had a lot of layers to it, right? I haven't read the book yet because you haven't given it to me yet. So I'm still waiting for it. Available outside. So my question is, the agitation has had a lot of layers. So, like for example, Sakshi was one of the face of the protest, and another face was Bajrang and Vinesh, and whatever happened with Vinesh, do we see another book coming in some years on Vinesh and maybe a part 2 of this book? I wouldn't know, as in Vinesh of course has her own story to tell. I think this book is very specifically about Sakshi's perception of what the event happened. This is Sakshi's truth of what has happened. And I think for the rest you should read the book. It's outside, you should buy it. I will. Thank you. We shall give you a copy, Shazia, after this. Okay, any more questions? Yes, please. One last question. Yeah. So my question was to Jonathan. Once you started writing this book, did it change your perspective towards athletes and their understanding of sports and life? Yeah, absolutely. जैसे मैं कहता हूँ कि मछली नहीं जानती कि what is water. For the मछली, water is water. It's what you live in. Even for someone like even शुरू में, like Satyavat also used to ask, I used to say कि okay, what exactly माने wrestling में क्या होता है, वो माने smell क्या होता है, when your opponent is there, क्या होता है उसमें. And Satyavat also would try and understand कि मैं क्या कह रहा हूँ, because Sakshi would sometimes find it difficult to explain it. I think it's even harder like for a athlete to explain the process of being an athlete. So then Satyavat would explain कि okay, this is what is thing, जब वो माने पकड़ होती है तो ये होता है, that is what happens. So it broadened my understanding of sport itself. A lot of times जब हम, especially when you write about things which, just say okay, say some a sport like say cricket, a lot of us have played it, so we understand जो details होती हैं, we immediately understand. जैसे कोई अगर short pitch बोलता है, we immediately understand what is short pitch. कोई swing बोलता है, we immediately understand, because we have some, even though हमने कोई ऊंचे level पे नहीं खेला, we still understand it. Wrestling is a sport which is very niche. Like it is like like a weight cut. Like there's such a long process. It's so complicated, but it broadens your idea of what sports is, of what the human body is capable of doing. I mean, the mentality of wrestlers is अलग level का mentality होता है उनका. I think it's true for a lot of elite athletes, of course, but getting into the mind of an elite Indian athlete is, I mean, it's a once in a lifetime experience, and to find out how their brain works, because their brain works very different from from most of our brains, and we cannot even fathom ki, like when I think about it, ki, I know ki if I had ever started wrestling, I would have quit in 1 month. There's no chance I would have continued. So to find out about them, why they, सबके motivations of course अलग होते हैं. सत्यवत का motivation अलग था. उनके father बहुत senior wrestler रह चुके हैं, Olympian रह चुके हैं. साक्षी के लिए अलग motivation था. But it's just it broadens your own horizons into what is possible for a human being to do.
I think we are done with the questions now, and thank you so much, gentlemen, for coming here. Indeed, Sakshi Malik has changed the perception of wrestling in India, and she's become an inspiration for many girls. Thank you so much for coming here and talking to us, and we had a lovely conversation here. If you could all stand together for a photo op. A huge round of applause for the gentlemen here.